اے دیکھنے والوں، تمہاری نظروں کے سامنے وہ دور پھر سے زندہ ہو رہا ہے جب ایک خواب نے حقیقت کا روپ دھارا۔ سلیمان شاہ کے پوتے اور تغرل غازی کے بیٹے غازی عثمان اول نے ایک چھوٹی سی جاگیر کو ایک عظیم سلطنت کی بنیاد میں بدل دیا۔ ایمان کا چراغ تھام کر، انصاف کا پرچم لہرا کر انہوں نے اناتولیا کے وسیع میدانوں میں عثمانیہ کے نام سے ایک نئی طاقت کا بیج بویا۔ ان کی تلوار نے ہر ظالم کو للکارا، ان کی حکمت نے بکھری ہوئی قوم کو ایک لڑی میں پرویا۔ عثمان غازی نے نہ صرف سلطنت قائم کی بلکہ اپنے پیچھے ایک ایسا وارث چھوڑا جو اس بنیاد کو آسمان کی بلندیوں تک لے جانے والا تھا، اور وہ وارث تھا عثمان اول کا دلیر بیٹا سلطان اورحان غازی۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح قائی قبیلے کے خیموں میں روشنی بکھیرنے والا وہ ننھا شہزادہ اپنی ذہانت، بہادری اور سادگی سے اپنے والد کا دست راست بنا۔ بچپن ہی سے گھڑ سواری، تیر اندازی اور اسلامی تعلیمات میں مہارت حاصل کرنے والے اورحان نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ان کی رگوں میں جہاد کا لہو دوڑ رہا تھا۔ ہم نے ان کے ابتدائی کارنامے دیکھے جب انہوں نے نائکیڈیا یعنی ازنک کے آس پاس کی مہم فتوحات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ نہ صرف ایک جنگجو تھے بلکہ ایک منتظم اور رعایا کے ہمدرد بھی تھے۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوما۔ 1324 عیسوی میں جب سلطان عثمان غازی کی زندگی کا سورج غروب ہوا تو بوجھل دل مگر مضبوط ارادوں کے ساتھ اورحان غازی نے عثمانی تخت سنبھالا۔ یہ ایک نازک وقت تھا، بکھری ہوئی بیلکوں، بازنطینی سلطنت کی سازشوں اور سلیمی خطرات کے بیچ اورحان نے اپنے لیے صرف سلطنت کے تخت کو نہیں بلکہ ایک امانت اور ایک جہاد کی ذمہ داری کو قبول کیا۔ ان کا پہلا فرمان تھا، انصاف اور فلاح سب سے پہلے۔ عثمان غازی کی وفات کے وقت برسا کی فتح کی خوشخبری تو مل چکی تھی مگر شہر پر ابھی مکمل کنٹرول حاصل ہونا باقی تھا۔ بازنطینی گورنر اور قلعے کے کمانڈر ابھی بھی سخت مزاحمت کر رہے تھے۔ اورحان غازی نے اپنی فوج کی قیادت کی اور شہر کے اندرونی اور بیرونی دفاعی نظام کو توڑنے کے لیے حکمت عملی کو تیز کیا۔ آخرکار 1326 عیسوی میں بازنطینی گورنر نے بغیر کسی مزید خون ریزی کے شہر کی چابیاں سلطان اورحان کے قدموں میں رکھ دیں۔ یہ محض ایک اور شہر پر قبضہ نہیں تھا، یہ ایک آزاد سلطنت کے پہلے دارالحکومت کا حصول تھا۔ فاتح کی حیثیت سے برسا میں داخل ہونے کے بعد اورحان نے سب سے پہلے شہر کو ایک انتظامی اور اسلامی مرکز میں بدلا۔ اورحان نے اپنے بھائی علاؤالدین پاشا کو اپنا پہلا وزیر مقرر کیا جن کی مدد سے انہوں نے سلطنت کے لیے ایک نیا قانون نامہ تیار کیا۔ اورحان نے اس شہر میں بڑے پیمانے پر تعمیرات کرائیں جن میں مساجد، مدارس اور بازار شامل تھے۔ سلطنت کی آزادی اور خود مختاری کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے اپنے نام کا عثمانی سکہ یعنی اقچہ جاری کیا اور خود کو باقاعدہ سلطان کہلوانا شروع کر دیا۔ برسا کی فتح سے اورحان کی ہمت اور طاقت دو گنا ہو گئی۔ بازنطینی شہنشاہ اینڈرونیکس تیسرا عثمانیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عثمانیوں کو ان کے اصلی علاقے تک واپس دھکیل دے گا۔ بازنطینیوں کی ایک بڑی اور منظم فوج اناتولیا کی طرف بڑھی۔ اورحان غازی اپنی فوج کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ 1329 عیسوی میں پلیکنون یعنی جدید ترکی میں گبزے کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ ایک نوخیز عثمانی ریاست کا براہ راست مقابلہ بازنطینی سلطنت کی پوری قوت سے ہو رہا تھا۔ بازنطینی فوج اپنی تعداد اور جنگی ساز و سامان کی وجہ سے عثمانیوں سے کہیں زیادہ طاقتور نظر آ رہی تھی، لیکن اورحان غازی نے اپنے والد کی تقلیدی عثمانی حکمت عملی پر بھروسہ کیا۔ ہلکی، تیز رفتار اور متحرک فوج۔ جنگ شروع ہوئی تو بازنطینیوں نے اپنی شاندار زرہ بختر والی فوج کے ساتھ عثمانی صفوں پر حملہ کیا مگر عثمانی تیر اندازوں نے ان کا زبردست استقبال کیا۔ اورحان نے اپنی فوج کو براہ راست لڑائی کے بجائے گوریلا اور حکمت عملی کی طرف راغب کیا۔ انہوں نے بازنطینی فوج کو تھکایا، منتشر کیا اور ان کے رسد کے راستوں کو نشانہ بنایا۔ ایک سخت مقابلے کے دوران بازنطینی شہنشاہ اینڈرونیکوس کو جنگ میں چوٹ لگی اور افواہ پھیل گئی کہ وہ مارا گیا ہے۔ شہنشاہ کے موت کی خبر نے بازنطینی صفوں میں افراتفری مچا دی۔ سلطان اورحان نے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور بھرپور حملہ کر دیا۔ بازنطینی فوج ٹکڑیوں میں بٹ گئی اور اسے شکست ہوئی۔ شہنشاہ کو جان بچا کر بھاگنا پڑا۔
पीली कनौन की जंग उस्मानी तारीख का एक फैसला कुन मोड़ साबित हुई। इस फतह ने न सिर्फ बाज़ंतीनियों के गरूर को खाक में मिला दिया, बल्कि ये साबित कर दिया कि उस्मानी सिर्फ एक मकामी ताकत नहीं बल्कि एक उभरती हुई आलमी ताकत हैं जो बाज़ंतीनियों की मरकजी फौज को भी शिकस्त दे सकते हैं। इस शिकस्त के बाद बाज़ंतीनियों की हिम्मत टूट गई और उन्होंने अनातोलिया के बड़े शहरों को बचाने की उम्मीद तकरीबन तर्क कर दी। पीली कनौन की फतह के बाद सुल्तान औरहान गाजी की नजरें बहरे मरमरा के पार बाज़ंतीनी शहर इज़्निक यानी नाइसिया पर थीं। ये शहर मसीही तारीख के लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल था और इसका हुसूल उस्मानियों के लिए एक बहुत बड़ा सियासी और फौजी कारनामा होता। सुल्तान जानते थे कि मुस्तकबिल की वसी फतुहात के लिए कबीली फौज और रजाकार गाजियों पर इन्हिसार काफी नहीं होगा। उन्हें एक ऐसी मुस्तकिल और मुनज़्ज़म फौज की जरूरत थी जो हर वक्त सुल्तान के इशारे पर तैयार रहे। इसी दौर में औरहान गाजी ने एक तारीख साज और दूररस फैसला लिया, यानीचेरी यानी नई फौज की तश्कील। यानीचेरी कोई आम फौजी दस्ता नहीं था, ये एक फौलादी कुव्वत थी जो बराह रास्त सुल्तान के वफादार थी। इस वफादारी का मकसद महज सुल्तान की जात की खिदमत नहीं था, बल्कि ये उस्मानी रियासत सल्तनत उस्मानिया की खिदमत, इसके इस्तेहकाम और इलाकाई तौसी का बुनियादी जरिया था। इस फौज की तश्कील के लिए उन्होंने एक अनोखा निज़ाम देवशीरमा शुरू किया। इस निज़ाम के तहत सल्तनत के मसीही खानदानों के नौजवान लड़कों को बचपन में लेकर उन्हें सख्त इस्लामी, इल्मी और अस्करी तरबियत दी जाती थी। चूंकि उनके ना कोई खानदानी ताल्लुकात थे और ना ही जागीरदाराना वफादारी, उनकी वाहिद और मुतलक वफादारी सिर्फ सुल्तान के साथ जुड़ी हुई थी। यही वफादारी दरअसल रियासत और कौम की मजबूती और दिफा की अलामत थी। इनकी तरबियत सख्तगीर, नज़्म ज़ब्त मिसाली और वफादारी बेमिसाल थी। यही तरबियत याफ़ा, मुनज़्ज़म और पेशेवर यानीचेरी फौज आने वाली सदियों तक उस्मानी सल्तनत की ताकत का नाकाबिले तस्खीर सुतून बनी रही। इसी नई और मुनज़्ज़म फौज की मदद से औरहान ने 1331 ईस्वी में इज़्निक का तवील मुहासरा जारी रखा। चूंकि पीली कनौन की शिकस्त के बाद बाज़ंतीनी शहनशाह मजीद कुमक भेजने के काबिल न रहा था, इज़्निक के बाशिंदे खुद को अकेला महसूस करने लगे थे। 2 साल के तवील और सबर आजमा मुहासरे के बाद ये अहम शहर भी आखिरकार उस्मानियों के कब्जे में आ गया। इस फतेह के बाद सुल्तान ने फातिहाना सादगी का मुजाहरा किया और चर्चों को मसाजिद में तब्दील करने के बजाय कई एक को बरकरार रखा जो उनकी मजहबी रवादारी की निशानी थी। इज़्निक की फतेह के बाद 1337 ईस्वी में इज़मित भी फतेह कर लिया गया, जिससे उस्मानी सरहदें बहरे मरमरा तक फैल गईं। इस तरह इन फतुहात ने बाज़ंतीनी सल्तनत को तकरीबन कुस्तुनतुनिया की दीवारों तक महदूद कर दिया। सुल्तान औरहान गाजी ने सल्तनत की तौसी के लिए सिर्फ तलवार ही नहीं बल्कि सियासी और अज़दिवाजी हिकमत अमली का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कई अहम शादियां की जो सल्तनत के इस्तेहकाम में मुआविन साबित हुईं। उनकी मशहूर बीवी नीलोफर खातून थीं जो एक बाज़ंतीनी टेकफूर की बेटी थीं और जिनसे उनके 2 इंतहाई काबिल बेटे पैदा हुए, सुलेमान पाशा और मुराद। इन दोनों शहजादों ने अपनी जवानी में कदम रखते ही मैदान जंग में अपने वालिद का साथ देना शुरू कर दिया। सुलेमान पाशा अपनी हिकमत और फौजी सलाहियतों की वजह से जल्द ही उस्मानी फौज के सबसे अहम सिपहसालार बन गए, जो बुरसा और इज़्निक की फतुहात समेत कई बड़ी मुहिम्मात में पेश रहे। शहजादा मुराद भी अपने वालिद के शाना बशाना कई मुहिम्मात में हिस्सा लेते रहे और फौजी और इंतजामी उमूर में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। ये दोनों जवान शहजादे न सिर्फ सुल्तान की ताकत थे बल्कि सल्तनत के मुस्तकबिल की जमानत भी थे। औरहान ने दीगर गैर मुल्की ताकतों के साथ भी हिकमत अमली के तहत ताल्लुकात कायम किए। उन्होंने बाज़ंतीनी शहनशाह जानशे कांताकुजिनोस की बेटी थियोडोरा कांताकुजिनोस से शादी की। ये शादी 1346 ईस्वी में एक बड़े सियासी और फौजी मुआहिदे के तहत हुई। बाज़ंतीनी शहनशाह को कुस्तुनतुनिया की खाना जंगी में उस्मानियों की फौजी मदद की सख्त जरूरत थी, जिसके बदले में ये रिश्ता कायम हुआ। थियोडोरा ने शादी के बाद भी अपना ईसाई अकीदा बरकरार रखा और तारीखी शवाहिद के मुताबिक उन पर इस्लाम कबूल करने के लिए कोई दबाव नहीं डाला गया। इस्लामी शरीयत में एक मुसलमान मर्द का अहले किताब औरत से निकाह जायज है और सुल्तान ने यह इत्तेहाद महज सियासी जरूरत और सफारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए किया। इसी तरह उन्होंने अपने बेटे शहजादा मुराद, जो बाद में सुल्तान मुराद अव्वल बने, की शादी 1381 ईस्वी में अनातोलिया की एक मजबूत तुर्क बेलिक किरमियान के सरदार की बेटी से कराई, जिसके जहेज में उन्हें कई अहम इलाके बगैर किसी जंग के हासिल हो गए। ये तमाम शादियां महज निजी ताल्लुकात नहीं थीं, बल्कि ये बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और इलाकाई तौसी का एक बेहतरीन जरिया था। सुल्तान औरहान की बसीरत का हतमी हदफ यूरोप यानी रूमेलिया की सरजमीन थी। जब बाज़ंतीनी शहनशाह ने अपने हरीफों के खिलाफ उस्मानियों से मदद तलब की तो औरहान ने अपने बेटे सुलेमान पाशा को अजीमुशान फौज के साथ यूरोप भेजा। इस इमदाद के दौरान उस्मानियों को यूरोप के फौजी और जोग्राफियाई हालात का तफसीली इल्म हासिल हुआ।
फिर 1354 ईस्वी में तकदीर ने उस्मानियों का साथ दिया। मरमरा के साहिल पर एक शदीद जलजला आया जिसने बाज़ंतीनियों के अहम किले गालीपुली को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। फौजी मुहिम्मात के माहिर सुलेमान पाशा ने इस खुदाई मौका को ज़ाया होने नहीं दिया। उन्होंने फौरन अपनी फौज को वहां भेजा और तबाहशुदा किले पर कब्जा कर लिया। गालीपुली को ये फतह उस्मानियों के लिए एक अहम तरीन मोड़ था। ये यूरोप में उस्मानियों का पहला मुस्तकिल और मजबूत कदम था, एक ऐसा पुल जो एशिया और यूरोप को जोड़ता था और कुस्तुनतुनिया की तरफ पेशकदमी का रास्ता खोलता था। सुलेमान पाशा ने इस इलाके को फौरी तौर पर तुर्कों से आबाद करना शुरू कर दिया ताकि ये ज़मीन हमेशा के लिए उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बन जाए। यूरोप में फतूहात का सिलसिला अपने उरूज पर था कि सुल्तान ओरहान की ज़िंदगी में एक अजीम अलमिया रुनुमा हुआ। उनका सबसे लायक, तजुर्बाकार और यूरोप की फतूहात का जिम्मेदार बेटा सुलेमान पाशा एक हादसे का शिकार हो गया। सन 1357 ईस्वी में घोड़े की सवारी के दौरान गिरने से वो शदीद जख्मी हुए और कुछ ही दिनों बाद खालिक हकीकी से जा मिले। सुल्तान ओरहान गाजी पर इस सदमे की गहराई नाकाबिले बयान थी। सुलेमान पाशा सल्तनत के आइंदा सुल्तान और यूरोप की फतूहात के मेमार थे। उनकी वफात ने सुल्तान की कमर तोड़ दी। गम के ये बादल उनके उम्र के आखिरी हिस्से में साया फिगन हो गए। सुल्तान गोशा नशीन हो गए, मगर ये एक मोमिन की अजमत थी कि उन्होंने इस अजीम दुख के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फौरी तौर पर सल्तनत के मफाद को मुकद्दम रखा और यूरोप में फौज की कमांड अपने दूसरे काबिल बेटे शहजादा मुराद को सौंप दी। सुल्तान ओरहान गाजी ने तमाम जाती और हुकूमती मुश्किलात का सामना करते हुए तकरीबन 36 साल तक सल्तनत पर हुकूमत की। उनकी हुकूमत वो दौर था जब सल्तनत को उस्मान गाजी की छोड़ी हुई बुनियाद से बढ़ाकर 6 गुना ज्यादा वसी कर दिया गया। उन्होंने एक मुनज़्ज़म सल्तनत, एक मुस्तहकम निज़ाम और एक फौलादी फौज अपने पीछे छोड़ी। सन 1362 ईस्वी में अपने महबूब बेटे की वफात के गम और जिहाद की थकन के साथ ये अजीम दूसरा उस्मानी सुल्तान बरुस्सा में अपने वालिद के पहलू में आराम फरमाया। सुल्तान ओरहान गाजी की वफात के बाद उनके काबिल और तजुर्बाकार बेटे शहजादा मुराद ने बरुस्सा में फौरन तख्त संभाला और सुल्तान मुराद अव्वल का लक़ब इख्तियार किया। सुल्तान मुराद अव्वल की तख्त नशीनी सल्तनत उस्मानिया के एक नए, जारहाना और तोसी पसंद दौर का आगाज थी। उन्होंने अपने वालिद और दादा की मिरास को आगे बढ़ाते हुए इस सल्तनत को एक अजीम बादशाहत में बदल दिया। आने वाली किस्तों में आप देखेंगे कि सुल्तान मुराद अव्वल ने किस तरह यूरोप में अदरना और थ्रीस के अहम इलाके फतह किए, किस तरह कोसोवो के मैदान में तारीख साज फतह हासिल की और सल्तनत की सरहदों को बल्कान के दिल तक पहुंचा दिया। मुराद अव्वल ने सल्तनत को मजीद मुनज़्ज़म किया और इसे हकीकी मानों में एशिया और यूरोप की एक ताकतवर तरीन हुकूमत बना दिया। ये सफ़र इंतहाई शानदार और कुर्बानियों से भरपूर है। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके सीरियल के शायान शान रही होगी। अगली किस्त का सफ़र बहुत दिलचस्प होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं अगले किस्त में एक और दिलचस्प और तारीख़ी कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।